हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, मैग्नेटिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अजय कुमार सर के बुक से रीडिंग हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देयर इज एन इंड्यूस्ड सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस। क्या होता है इंड्यूस्ड सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस? दिस इंड्यूस्ड सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू अ मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है यही जो सर्कुलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, राइज करता है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दैट यूजुअली क्या होता है अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और उस क्या होता है एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जैसा जनरेट होता है और क्या करता है वो अपोज करता है अप्लाइड, जो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको अपोज करता है। एज अ रिजल्ट द सब्सटेंस इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इफेक्ट इज सेड टू बी डाईमैग्नेटिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? डाईमैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। दिस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कब होता है? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। द डाईमैग्नेटिक इफेक्ट्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। This effect arises in substance in which there are only paired electrons or paired electrons along with unpaired electrons. ठीक है? If a substance has only paired electrons, the diamagnetic effect is dominated. On the other hand, if a substance has paired as well as unpaired electrons, the paramagnetic effect is dominated. The substance having only paired electrons exhibit a weak magnetic moment. The substance having only paired electrons exhibit a weak magnetic moment known as diamagnetic, and such substances are called diamagnetic substances. In these substances, the induced circulation of electrons occur within the orbitals of the substance that are occupied in the ground state. Okay. In some cases, the molecules are paramagnetic. In some cases, the molecules are paramagnetic despite having only paired electrons. Okay. The induced magnetic moment is aligned in the direction of applied magnetic field because they use LUMO, that is close to HOMO in energy. LUMO means lowest unoccupied molecular orbital, HOMO means highest occupied molecular orbital. This orbital paramagnetism can be distinguished from spin paramagnetism by the fact that it is a temperature independent. कि हमारा पैरामैग्नेटिक क्या होता है? इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट and it is called temperature independent paramagnetism because क्यों? Because the electrons present in HOMO can be excited to LUMO by thermal motion. Any substance that has one or more unpaired electrons exhibit stronger and paramagnetic field properties is known as paramagnetism. कोई भी सब्सटेंस के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और उसको क्या बोलेंगे? एग्जिबिट करेगा स्ट्रॉन्ग एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी। उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द स्पिन, किससे होता है? फ्रॉम द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Paramagnetism arises from the spin and orbital motion of the unpaired electrons in the absence of an external magnetic field. Such substances are said to be paramagnetic. When a paramagnetic substance is placed in an external magnetic field, the permanent magnetic moments tend to align themselves is the direction of external magnetic field, and as a result are attracted into the external magnetic field. क्या बोल रहा है? When a paramagnetic substance मतलब unpaired electrons वाला जो substance है, when a paramagnetic substance is placed in an external magnetic field, external magnetic field में उसको रख दिया, the permanent magnetic moment tend to align themselves, अपने आप से वो align हो सकता है themselves in the direction, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा अपना खुद का सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट आर अट्रैक्टेड इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. Since the paramagnetic effect is much larger than diamagnetic effect, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन डायमैग्नेटिक इफेक्ट एंड अपोजिट टू द डायमैग्नेटिक इफेक्ट. द पैरामैग्नेटिक इफेक्ट देयरफॉर कैंसल्स द डायमैग्नेटिक इफेक्ट. Hence paramagnetic effect is dominant in all substances containing either one or more unpaired electrons. Thus, due to net paramagnetic effect,
द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हमारा क्या होता है, दस ड्यू टू नेट पैरामैग्नेटिक इफेक्ट्स द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा तो क्या होगा, द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, magnetic moments of individuals molecules or randomized मतलब इधर उधर घूमते हैं by thermal motion and the substance as a result has no magnetic moment because the randomization of individual magnetic moments causes cancellation of one another as shown in figure 6.1। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये रैंडमाइजेशन मतलब कि कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं देगा, हर डायरेक्शन में अपना ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स का रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस कर दिया हमने, लगा दिया, तो क्या होगा, देर इज अ कंपटीशन बिटवीन रैंडमाइजेशन, रैंडम होता है ना, randomization of individual magnetic moment due to thermal motion and field strength for alignment। क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द कंपटीशन किसके बीच में होता है, बिटवीन randomization ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू थर्मल मोशन एंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अलाइनमेंट, और फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है उसके बीच में, ठीक है। तो क्या होता है, कंसिक्वेंटली पैरामैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पैरामैग्नेटिक इफेक्ट हमारा डिक्रीज होगा। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज रैंडमाइजेशन एंड डिक्रीज द पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा पैरामैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा रैंडमाइजेशन मतलब और रैंडम हो जाएगा हमारा वो डाइपोल, ठीक है। द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। The measurement of magnetic properties experimentally does not involve the measurement of magnetic moment। क्या बोला है, the measurement of magnetic properties experimentally does not involve the measurement of magnetic moment, ठीक है, but instead magnetic moment is calculated from the measurement of magnetic susceptibility, ठीक है। when a substance is placed in an external magnetic field, external field of strength, उसको H बोलते हैं, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक जो प्रोड्यूस होता है अंदर से सब्सटेंस का जो इंड्यूस्ड होता है, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इन द सब्सटेंस विल आइदर बी ग्रेटर देन और लेस देन अप्लाइड फील्ड डिपेंडिंग वेदर द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है। समझा आपको कि अगर हमारा उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेस करते हैं सब्सटेंस को तो ज़्यादा भी हो सकता है उसका फील्ड स्ट्रेंथ, तो कम भी हो सकता है, किससे ज़्यादा, अप्लाइड जो हम लोग एक्सटर्नल दे रहे हैं, कब कम ज़्यादा होगा डिपेंड करता है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा। द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसको बी से डिनोट किए, इन द सब्सटेंस एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और उसको एच से डिनोट किया, जो अप्लाइड हम लोग एक्सटर्नल लगा तो उसको एच से डिनोट कर रहे हैं, और जो हम लोग इंड्यूस्ड हो रहा है सब्सटेंस को उसको बी से डिनोट कर रहे हैं, इज गिवन बाय क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू बी माइनस एच। द डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ अप्लाइड ये हो गया, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड मतलब हमारा एच वाला, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको टर्म में यूज करेंगे, ठीक है। एज सुन बिलो, बी माइनस एच जितना ज्यादा उसका 4 पाई आई मतलब इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, सोचो अभी जो सब्सटेंस का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है 4 पाई हमने बड़ा बी माई एच, हाँ बोथ आर प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जितना अप्लाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना ही हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा। नाउ डिवाइड द इक्वेशन, सेकंड कौन सा है, 4 पाई आई मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली बी माइनस एच, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड बाई एच, हम सेकेंड को मतलब इक्वेशन सेकेंड वाले को मतलब 4 पाई आई इक्वल टू बी माइनस एच को एच से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, द टर्म बी बाई एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब मतलब आपने बुक्स पढ़ने का ये एक फायदा होता है ना कि हमें एक एक वर्ड का वो मिल जाता है, मतलब कुछ वर्ड हमारे लिए नए नहीं होते फिर, क्योंकि ये होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होता है, द टर्म बी बाई एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड it is the ratio of density of line of magnetic field
इन द सैंपल टू द डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स इन वैक्यूम। क्या होता है? इट इज द रेशियो किसका होता है? डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सैंपल, सैंपल में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, टू द डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम में, ठीक है। द टर्म आई बाई एच को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर बी बाई एच रहेगा तो परमिबिलिटी बोलेंगे, और आई बाई एच रहेगा मतलब बी की जगह आई इंटेंसिटी वाला आ गया तो ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। the magnetic susceptibility per unit volume of the substance and is called volume magnetic susceptibility, उसको कप्पा से डिनोट करते हैं। the quantity कप्पा is measure of the extent to which substance tends to magnetize, ठीक है। तो क्या करेंगे? 4 pi k equals to b by h minus 1। the quantity कप्पा is positive for paramagnetic substance and negative for diamagnetic। paramagnetic के लिए पॉजिटिव रहेगा कप्पा की वैल्यू, ठीक है, और हमारा डाईमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव रहेगा। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। द वॉल्यूम सब्सेप्टिबिलिटी इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऑफन द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली इज द स्पेसिफिक सब्सेप्टिबिलिटी काई, चाई बोलते हैं उसको या काई बोलते हैं, ठीक है। ऑफन द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली इज द स्पेसिफिक सब्सेप्टिबिलिटी काई एंड इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग कप्पा बाय द डेंसिटी ऑफ द सैंपल, ठीक है। काई को क्या बोलेंगे? कप्पा डिवाइड बाय डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी, तो हमारा ये आ जाएगा स्पेसिफिक सब्सेप्टिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप सिर्फ एक बात सुन के रखिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस तरह मैं आपको मतलब एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भले से आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे या कैसा भी लगे, पर प्लीज़ आप कैसे भी करके इस वीडियो को सारे पार्ट को आप देखिएगा ज़रूर। इससे क्या होगा कि आपको एक एक मतलब बुक्स या तो आप खुद से पढ़ो, मैं ऐसा ये नहीं कि ठीक है मेरा चैनल पे आप पढ़ लो, ठीक है, ऐसा मेरा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आपको टाइम नहीं है, अगर आप ऐसे कहीं बैठे हैं फ्री टाइम पे, तो आप हेडफोन लगा के कान में अपना सुनते रहिए, देखते रहिए। हाँ, आप क्योंकि मैं उतना ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है, तो आपको वर्ड बाय वर्ड उसको आपको माइंड में देखना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ आप अपने समझोगे, कुछ मेरे वर्ड को मैं समझा रहा हूँ उसको समझोगे, ठीक है। मेन बात है कि आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, आपको इस वीडियो से कंटेंट मिलना चाहिए। Finally, a molar susceptibility Chi-m is obtained by multiplying chi by the molecular mass of the sample. Chi-m क्या होता है? Chi into m equals to k by d into m. Molar magnetic susceptibility is a measure of the degree to which one mole of substance interact with the applied magnetic field. मोलर मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? मेजर क्या होता है? डिग्री टू विच वन मोल ऑफ सब्सटेंस कितना इंटरेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, वही होता है हमारा मोलर मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी is measured for a substance consists of contribution from paramagnetic and diamagnetic susceptibility. The paramagnetic susceptibility is much greater than that of diamagnetic susceptibility, ठीक है, paramagnetic ज़्यादा होता है। For a diamagnetic substance, the diamagnetic susceptibility will be the sum of contribution from its constituents atoms. For a substance containing very small diamagnetism as compared to paramagnetism, then it can be neglected. For substance containing very small diamagnetic as compared to paramagnetic, तो हम उसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। If a substance contain large number of diamagnetic atoms per paramagnetic atoms, as in a metal ion complex, the diamagnetic contribution will be significant and cannot be neglected. It is observed that diamagnetic is an additive. Diamagnetic क्या होता है? Additive quantity, and the diamagnetic susceptibility of a substance can be obtained as a sum of contribution from each constituent atoms. If a substance contain paired as well as unpaired electrons, हाँ substance क्या हो रहा है? Paired भी है as well as unpaired electron, the applied field induces a diamagnetic in opposition to the paramagnetism of the unpaired electrons. Thus, it reduces the susceptibility of the sample below that which is due to the paramagnetism alone. The measured magnetic susceptibility should be corrected by subtracting diamagnetic susceptibility from it. ठीक है, सिंपल सा हमें है कि जितना पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतने हमें उसका आएगा वैल्यू। करेक्टेड आर पैरामैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी क्या होता है? मेजर सब्सेप्टिबिलिटी माइनस डायमैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो एक्सम क्या होगा हमारा? पैरामैग्नेटिक का क्या होगा? जितना मेजर किया गया और डायमैग्नेटिक उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। सिंस द डायमैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, द अबव रिलेशन कैन बी रिटन, उसको क्या करेंगे हम लोग? एक बॉन्ड लगा के लगा देंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी द करेक्टेड मोलर सब्सेप्टिबिलिटी XPM काई बोलते हैं, इज रिलेटेड टू द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब देखो कहाँ से कहाँ रिलेट हो रहा है, पर आप देखते रहो सुनते रहो बस, ठीक है। फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी द करेक्टेड मोलर सब्सेप्टिबिलिटी XP/M is related to the effective magnetic moment mu effective of the substance according to the following equation.
PM इक्वल्स टू n स्क्वायर म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3RT, वेयर n क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R इज आइडियल गैस कांस्टेंट, म्यू इफेक्टिव इज एक्सप्रेस्ड इन 4 मैग्नेट्रॉन्स। ठीक है, तो म्यू इफेक्टिव का भी यहाँ पे देखा, काई का क्या होता है n स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 3RT। ठीक है, अब यहाँ म्यू इफेक्टिव क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है म्यू इफेक्टिव क्या होगा। देखो हम लोग प्यार में मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पढ़ा हम लोग ने। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा। ठीक है, द सब्सटेंस का। अब हमें क्या पढ़ना, म्यू इफेक्टिव क्या होता है, 3RT XMP एक अपॉन n स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो म्यू इफेक्टिव क्या होगा 2.84 XMPT इंटू टी होल के पावर 1/2 बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये सब आपको मतलब एक बस देख के लेना है म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, अगर XM के फॉर्म में लिखा जाए तो आप सॉल्व कर लेना चाहिए। BM इक्वल्स टू ये H अपॉन 4πm। Pierre Curie has shown that paramagnetic substitutability is inversely proportional to the absolute temperature। तो पैरामैग्नेटिक का होता है और टेम्परेचर का क्या रिलेशन, इनवर्सली है। तो वही बोल रहा है कि पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी के हस्बैंड है पियरे क्यूरी, has shown that paramagnetic substitution is inversely proportional to the absolute temperature। ठीक है, where C is Curie constant and is equal to n square mu effective square upon 3R। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। This expression is known as Curie's law। This law is restatement of equation 9। The Curie's law is valid only for paramagnetic substance that are magnetically dilute। The paramagnetic substitutability corrected for diamagnetic plotted versus the reciprocal of the absolute temperature, or reciprocal of the paramagnetic substitutability versus absolute temperature। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ एक ग्राफ बनाएंगे पैरामैग्नेटिक सब्स्टिट्यूटिविटी वर्सेस रेसिप्रोकल वर्सेस क्या बोलेंगे प्लॉटेड वर्सेस द रेसिप्रोकल ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा अभी कि क्या रिलेशन होता है, C/T का रिलेशन होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेट लाइन विथ जीरो इंटरसेप्ट and slope equals to C। In some substances that are not magnetically dilute, the magnetic moment of unpaired electrons on neighboring atoms may couple with each other। This substance may behave as either ferromagnetic or ferrimagnetic or antiferromagnetic। This compound obey the Curie-West law। क्या होता है Curie-West law, बस C/2 हमने पढ़ा था Curie's law। तो XMP वही पैरामैग्नेटिक का हो गया T माइनस थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या नया टर्म है यहाँ पे, वह थीटा इज एन एम्पेरिकल कांस्टेंट is the temperature at which line intercept the t axis। थीटा क्या है, empirical constant है, temperature है, is the temperature at which line intercept the t axis in a plot of 1 by xmp versus t। in this plot the intercept of this substance is not zero। intercept हमारा क्या होगा, not zero नहीं होगा। for this compound the magnetic moment at a given temperature can be calculated from the इक्वेशन क्या है, म्यू इफेक्टिव इक्वल्स टू 2.84 xmp। सब वहाँ पे t माइनस थीटा करना है। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ये देखो क्यूरी टीसी यहाँ पे ये। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉजिटिव द सब्सटेंस इज सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, तो फेरोमैग्नेटिक। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है एग्जाम में कि वैल्यू अगर थीटा का पॉजिटिव तो क्या बोलेंगे, तो थीटा पॉजिटिव है तो फेरोमैग्नेटिक एंड थीटा नेगेटिव है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, if there is interaction between magnetic moment on neighboring atom of a paramagnetic substance spontaneous ordering of a magnetic moment occur below a particular temperature called a critical temperature। if alignment of all the magnetic moment of neighboring atoms in the same direction and produces a permanent magnetic moment the substance is said to be ferromagnetic। क्या बोल रहा है, if alignment of all the magnetic moment of neighboring atom is in the same direction at and produces a permanent magnetic moment the substance क्या बोलेंगे उसको, ferromagnetic। and the critical temperature is called Curie temperature Tc। above this temperature the substance behave as a normal paramagnetic substance। क्या होगा टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर के ऊपर above this temperature Curie टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। below Curie temperature XMP for a ferromagnetic substance is much higher than XM for a normal paramagnetic substances। below TC मतलब critical temperature ferromagnetic substance obeys Curie-West law। Iron, cobalt, nickel and CrO2 exhibit ferromagnetic below Curie temperature 1043 Kelvin 1 मतलब उसका टेम्परेचर बताएं। if some of the magnetic moments are symmetrically aligned
if some of the magnetic moments are symmetrically aligned opposite to the other to give a resultant magnetic moment. The substance is said to be ferrimagnetic. क्या बोला? If the sum of the magnetic moment are symmetrically aligned opposite to the other to give a resultant magnetic moment, the substance is called said to be ferrimagnetic. And the critical temperature of once again is called Curie temperature Tc. An important example of ferrimagnetic substance is magnetic Fe3 magnetite Fe3O4. ठीक है. In this substance the magnetic moment of Fe2 and Fe3 are aligned in opposite direction and the resultant magnetic moment is only from Fe2 moments. ठीक है, ये देखो हमारा Fe2 moments. If half of the magnetic moments are aligned in opposite direction to the other half resulting in a net zero magnetic moment, the substance is said to be anti-ferromagnetic and the critical temperature is called the Néel temperature. यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको Néel temperature बोलेंगे. MnO क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है with Néel temperature of 116 Kelvin. MnO, there is sigma interaction between the half filled Eg orbital of Mn plus 2 ions and the filled p sigma orbital of oxide and as shown below. ठीक है. The spins of all the 5d electrons in one Mn plus 2 are opposite to that of other Mn plus 2 ions. The oxide electrons which interact with Mn1 substance must have its spin opposite to that of the Mn1 electron, leaving an electron of opposite spin to interact with Mn2. मतलब एक का अगर ऊपर है तो प्लस हाफ है तो एक दूसरे का माइनस हाफ होगा, यही बोल रहा है अपोजिट हाफ. ठीक है. Therefore the manganese electrons are anti-ferromagnetically coupled. Another example of anti-ferromagnetic का क्या होगा? Substance is nickel oxide NiO. Variation of magnetic susceptibility and with temperature for diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic or ferrimagnetic. ठीक है, फेरो का फेरी एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज शोन इन फिगर 6.4. ये आपका देखो मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटी, ये अपना इसका है, सेकेंड का है. ठीक है, इसका फोर्थ का. नाउ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू बी इन अ मोशन. चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है? मोशन में है. अ मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस. क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन. इलेक्ट्रॉन ट्रीटिंग द चार्ज पार्टिकल. हाँ, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन होता है दैट गिव राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट. द फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन विच द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस. इलेक्ट्रॉन का खुद का रोटेशन और इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल के अलॉन्ग रोटेशन. जैसे लट्टू होता है, लट्टू आपने सुना होगा, खेलते थे पहले बचपन में. तो लट्टू क्या करता है? खुद में भी रोटेट करता है. अगर खुद का लट्टू नाच मतलब खुद से नाच रहा है तो उसको बोलेंगे स्पिन वाला. और एक सर्कुलर के पाथ में मतलब घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक ऐसा रहता है. मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा हेल्प करता हूँ बताने का. जैसे आपका ये लट्टू रहता है, मैं शायद भूल गया बनाना, उल्टा बन रहा हूँ क्या? ऐसा रहता है शायद, ऐसा. ये आपका लट्टू रहता है तो ये अपना खुद का रोटेट करता है और ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे 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 ये पाथ भी करता है. अगर ये करेगा तो ऑर्बिटल मोशन होगा और ये अपना खुद का जो रोटेट कर रहा है उसको बोलेंगे स्पिन वाला. ठीक है, और इसको बोलेंगे ऑर्बिटल वाला. ठीक है, वही यहाँ पे. वही तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन दैट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट. द फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन विच इज द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन about its axis and the magnetic moment resulting from this electron spin is called the spin magnetic moment. इसको क्या बोलेंगे? spin magnetic moment which is characterized by the spin angular momentum quantum number s. The second is the electron orbiting, अभी बताया जो orbiting about the nucleus. The magnetic moment resulting from this electron orbiting is called orbital magnetic moment μL, which is characterized by total orbital angular momentum L. क्या होता है? The second is the electron orbiting about the nucleus. The magnetic moment result from this electron orbiting is called orbital magnetic moment μL, which is characterized by total orbital angular momentum L. Thus, the magnetic moment of paramagnetic substance is due to the contribution from spins and orbital motion of unpaired electrons. The magnetic moment of a paramagnetic substance depends upon the energy difference between the adjacent states of J values Z dash and Z dash plus 1. In general, Z dash and Z dash plus 1 states are the ground and first excited state respectively. The energy difference between two adjacent states is given by the expression Z dash plus 1 into lambda, where lambda is called the spin orbit coupling constant. Let us consider, for example, 3f state of D2 configuration for which 2s plus 1 equals to 3
वेयर एस इक्वल टू 1 है, एल इक्वल टू हमारा 3 है एंड फॉर एफ टर्म्स, ठीक है, एंड जे इक्वल टू 4 3 2, thus 3f terms state split into 3f2 3f3 and 3f4 states. Each of these states have a definite amount of energy. ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे इसको स्प्लिट करते हैं 3f को, मतलब ये 2s+1 से निकालते हैं 2s+1 इक्वल टू 3, तो वहाँ पे हमें s की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से जो f टर्म है वहाँ से हमें मिल जाएगी, जिसे आपको बता ही देता हूँ। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो पिछले लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएगा, ठीक है, बेटर आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, मैं आपको थोड़ा फास्ट बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 2s+1 के इक्वल होता है और ये हमारा l के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2s+1 इक्वल टू 3 हो गया, तो 2s इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो s इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो s की वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ पे, s की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अभी l कैसे निकालेंगे, तो l कैसे निकालते हैं, s p t f g h i कैसे रहता है, इस s को 0, p को 1 2 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमारा f टर्म्स है, f मतलब क्या यहाँ पे होगा, f मतलब 3, तो l की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा l की वैल्यू दिखाता है कि l की वैल्यू क्या होगा, तो l की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। इसीलिए हमें s की वैल्यू मिल गई, l की वैल्यू मिल गई फॉर f टर्म, एंड j निकालना है तो l माइनस एस या l माइनस एस से l प्लस एस तक निकालते हैं, ठीक है। हमारा l क्या है, हमारा 3 है और s क्या है 2 है, मतलब 3 माइनस 1 से लेके 3 प्लस 1 तक निकालना है, मतलब 2 1 एंड 2 सॉरी 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 3 माइनस 3, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, 3 प्लस 1 से 4 3 2 1 ऐसे जाता है, ठीक है। एल प्लस एस से एल माइनस एस आता है, ठीक है, ये नहीं रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 4 3 एंड एल माइनस एस इज 2 4 3 2, तो जी की वैल्यू क्या आ गई 4 3 2, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन सा ग्राउंड स्टेट है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो ईच ऑफ दिस हैव अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर स्टेट का अपना अपना डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। According to Hund's rule, the 3f2 state is the ground state. 3f2 को क्या बोले, ग्राउंड स्टेट, एंड द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ 3f4 का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव पार्ट ऑफ दिस स्टेट इज 3 lambda and 4 lambda respectively. In magnetic field, these states are further split into 2j plus 1 different states, each of which is separated from adjacent states by energy g mu b into h. g हमारा क्या है, g mu b into h, where g क्या हमारा Landes splitting factor, g is a constant called as Landes splitting factor for the substance, h is called magnetic field and mu b is called Bohr's magneton. The splitting pattern for 3f state is shown, क्या होता है हमारा, समझा आपने, 3f को हमने स्प्लिट किया 3f4 3f3 3f4, इसको भी स्प्लिट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। The values of lambda is very small for light atoms and larger for the heavier atom. The extent to which states corresponding to different J values are populated at ordinary temperature depends upon how large the energy difference between ground and excited states as compared with the thermal energy available equals to kT. At 300 Kelvin, kT equals to क्या होगा 200 centimeter inverse. If the separation between ground state and first excited state is sufficiently large, क्या होता है सेपरेशन हमारा ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का सफिशिएंट लार्ज है, दैट इज ग्रेटर देन केटी, देन द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एलएस विल बी अप्रिशिएबल. सच ए सिचुएशन अराइजेस इन हैवियर एलिमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर लैंथेनाइट. क्या होता है सेपरेशन हमारा ग्राउंड और एक्साइटेड का ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा एलएस कपलिंग अप्रिशिएबल होगा. सच ए सिचुएशन अराइजेस इन हैवियर एलिमेंट पर्टिकुलरली फॉर लैंथेनाइट्स. फॉर सच सब्सटेंस द मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा जी इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू रूट ओवर जी म्यू इक्वल्स टू जी रूट ओवर जे प्लस 1, ठीक है. तो आपको फॉर्मूला याद होता है. तो वे जे क्या हमारा जे इज कॉल्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड जी इज द लैंडेस फैक्टर. जे हमारा क्या हो टोटल एंगुलर होगा वही एल प्लस एस वाला, और जी हमारा क्या लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर है फॉर द इलेक्ट्रॉन. जी कैसे निकालेंगे 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1. ये या तो ये आप फॉर्मूला याद करो, इसमें से दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो. मतलब यहाँ पे जी निकालने का दो फॉर्मूला है, मतलब ये और करके यहाँ पे, ठीक है. ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला, ये और करके, या तो आप ये फॉर्मूला याद करो तो आप ये फॉर्मूला, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद करो, आपको जो बेटर लगे. 3/2 प्लस एस एस माइनस एल अपॉन जे,
आप ऐसे कर सकते हो एस माइनस एल अपॉन जे, बस यहाँ पे 3/2 प्लस कर देना है, यहाँ पे आपको कर देना है एस का एस 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 प्लस वन, बस माइनस एल एल प्लस वन, वहाँ पे बस जे जे प्लस वन, बस यहाँ पे 2 लगाना है। तो जो भी आपको लगे, या तो ये फॉर्मूला लगे या तो ये लगे, दोनों आप लगा सकते हो, ठीक है। जे इक्वल्स टू एल प्लस एस फॉर मोर देन हाफ फील्ड। एल एल प्लस एस कब होगा, जब हाफ फील्ड से ज़्यादा होगा, और जे एल माइनस एस फॉर लेस देन हाफ फील्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल पी आर थ्री प्लस एज द कन्फिग्रेशन 4f2 निकाला आपने, पी आर थ्री प्लस का तो 4f2 आया उसका, प्लस 3+2 तो इसका एस आपको तो निकालने आता है, एस कैसे होगा 1/2 प्लस 1/2 तो इसका 1 आ जाएगा। एल कैसे निकलेगा 3 5 आ जाएगा एल। तो सिंस एफ सेल सब सेल इज लेस देन हाफ फील्ड, एफ हमारा क्या है देखो, हाफ फील्ड कब होगा, ये एफ ऑर्बिटल है ना 3 2 1, मतलब इसमें 7 होना चाहिए था, अगर 7 से कम है तो हम उसको हाफ फील्ड बोलेंगे। तो सिंस एफ सेल इज अ लेस देन हाफ फील्ड, देयरफॉर हम क्या करेंगे, जे इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एल माइनस एस, एल माइनस एस वाला पुट करेंगे तो क्या होगा 5 माइनस वन इक्वल टू 4, ठीक है। अब जी का वैल्यू लगा देंगे, जी का वैल्यू क्या होता है 3/2 प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन अपन 2 जे जे प्लस वन, ये ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इजी फॉर्मूला है 3/2 प्लस एस एस वन, ये वाला, ठीक है। अब इसको निकाल लोगे तो मतलब एस एल एस माइनस एल अपॉन जे रहता है, बस यहाँ पे 2 याद करना है आपको, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 ऐड करना, तो आप इसको पुट करोगे पूरे फॉर्मूला को, अपने जे को निकाल लिया 5 4 यहाँ पे, तो पुट करोगे 0.8 आएगा। आपने क्या निकाल यहाँ पे जी का वैल्यू निकाला। अब फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू जी, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला होता है जी रूट ओवर जे जे प्लस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, म्यू का, एक मिनट, म्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सही से नहीं लिखा है पर आप देख लेना, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपने जी का वैल्यू निकाल लिया 0.8, और यहाँ पे आपको जे जे का वैल्यू पता है 4 4 और 4+1, तो आपने उसको निकाल लिया 3.458, ठीक है। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारा क्या है 3.47, आपने निकाला 3.5 है, ठीक है, बहुत अप्रोक्सीमेट मतलब बहुत नियर है। द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट बाय द एबव फॉर्मूला ऑफ फॉर lengthenoids have good agreement with observed value. For most lengthenoids the value of lambda is about 1000 centimeter inverse. However, lambda value for europium 3 plus and samarium 3 plus sm 3 plus is about 300 centimeter inverse. फॉर मोस्ट लेंथनेट क्या होता है, लेमडा इज अबाउट 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है हमारा, बट हमारा यूरोपियम में यू थ्री प्लस और एस एम प्लस थ्री में क्या होता है, हमारा लेमडा 300 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, विच इज स्मॉल वैल्यू, देयर फॉर द एग्रीमेंट ऑफ यू थ्री प्लस एंड एस एम प्लस थ्री इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। आपने बहुत इसका बारे में सुना होगा कि ये थ्री प्लस और इसमें एस एम प्लस थ्री में ये फॉर्मूला नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, आपको रीजन आज पता चलेगा, क्योंकि लेमडा की वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। लेमडा की वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन इसमें यूरोपियम थ्री में और एस एम थ्री में बहुत कम है, 300 सेंटीमीटर है, ठीक है। For complexes in which lambda is value is very small and separation between ground state and first excited state is small, spin orbit coupling is negligible, but spin and orbital contribution both are significant. In these complexes, spin and orbital magnetic moment of electron function independently. For electron spin only s l equals to 0, एस जे इक्वल टू एस, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया वहाँ पे, एल को आपको पुट करना है 0 और जे को एस के इक्वल पुट करना है, मतलब एस अगर एल हमारा 0 होगा तो क्या है यहाँ पे बचेगा, एल हमारा जे इक्वल टू क्या होता है एल प्लस एस, एल हमारा 0 होगा तो जे इक्वल टू एस ही तो आएगा, तो आपने सेम फॉर्मूला भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 निकाल लिया आपने फॉर ऑर्बिटल मोशन, एस इक्वल टू 0 एल जे इक्वल टू एल, ऑर्बिटल मोशन क्या हमें जे इक्वल टू एल करना है, एस इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। आप अलग अलग निकालो तो भी उसका आ जाएगा, जी इक्वल टू होना है 10 म्यू कैल। अब देखो जब भी हमारा ऐसा ये आया नॉर्मल, तो हम क्या फॉर्मूला करते हैं, रूट ओवर 4 4s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1 फोर्स मैग्नेटॉन। In case of complexes of transition metal of 3D series, the ligands diminish the orbital motion of electrons around the nucleus, and hence the magnetic moment due to orbital motion of electron is said to be quenched. क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन हमारा क्वेंच हो जाता है एंड द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कैन बी नेग्लेक्टेड, दैट इज एल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एल इक्वल टू 0 हो जाए तो एल प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देयरफॉर द मैग्नेटिक मोमेंट मे बी कंसिडर्ड टू अराइज ओनली ड्यू टू द स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। The equation is reduced to mu equals to root over 4s 4 root over 4s s plus 1, ठीक है। The equation is known as spin only formula for magnetic moment. Mu spin क्या होता है, root over 4s s plus 1 Bohr's magneton. If number of unpaired electron is n, then n s equals to n by 2,
म्यू इक्वल्स टू रूट ओवर n+2, ठीक है। 1 वोल्ट्स पर न्यूटन क्या होता है, EH/4πm, जो कि वैल्यू होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, वेयर E is the electronic charge, H is the Planck's constant, m is the mass of electron. The calculated values of spin-only magnetic moment for 1, 2, 3, 4 and 5 unpaired electrons are 1.73. देखो यहाँ पे एक हिंट रहता है, अगर 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, 3 है तो 3.8 समथिंग रहेगा, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, 5 है तो 5। आप ऐसे भी याद करते हो, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका वहाँ पे पहला वैल्यू रहेगा, ठीक है। The calculated and experimental magnetic moment for complexes of transition elements are of 3D series are given in table 6.1. The table 6.1 indicates that the experimental magnetic moment for complexes of first row transition metal ion do not agree with those calculated by equation 1 and 2. Though there is a good agreement between experimental magnetic moment and calculated by spin-only formula. However, in some cases, the experimental magnetic moment is higher than that of calculated by spin-only formula. This is due to the sum orbital contribution. The orbital contribution is possible only when an orbital will transform into an equivalent orbital by rotation. The T2g orbital dxy, dyz and dzx can be transformed into each other by rotating about an axis by 90 degree. The EG orbital dx square minus y square and dz square cannot be transformed into one another because they have different shape, ठीक है, और उसका डिफरेंस होता है, वो रोटेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते। Therefore, these orbitals have no orbital contribution. If all the T2g orbitals are singly occupied, then it is not possible to transform an orbital. Say the dxy orbital into dyz or dzx orbital because they already contain an electron with same spin as the incoming electron. Similarly, it is impossible to transform an T2g orbital in other if all the T2g orbital are doubly occupied. Thus, T2g orbitals with T2g3 and T2g6 configuration have no orbital contribution. The configuration other than T2g3 and T2g6 makes orbital contribution to the magnetic moment of octahedral complexes. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे कि हमारा T2g3 रहे या तो T2g6 रहे तो हमारा रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेशन नहीं होगा तो हम उसको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमारा वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। Therefore, in octahedral complexes, the following configuration makes orbital contribution, ठीक है। The configuration other than T2g3 and T2g6 makes orbital contribution to the magnetic moment of octahedral complexes, ठीक है। Therefore, in octahedral complexes, the following configuration make orbital contribution. जैसे D1 हो गया, D1 में क्या है, T2g1 है, T2g2 है, फिर T2g4 है, T2g5 है, इस समय क्या होगा, हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे। T2g4 है, T2g5 है, हमारा Eg क्या होता है, हमारा ये होगा, ठीक है। द following configuration in octahedral complexes of first series transition metal ion have no orbital contribution, ठीक है। जैसे T2g3 हो गया, T2g3 हो गया, Eg1 हो गया, T2g3 हो गया, Eg2 हो गया, ठीक है, सब फुल है। T2g6 हो गया, Eg2 हो गया, T2g6 हो गया, Eg3 हो गया, तो Eg में तो हमारा होगा ही नहीं, पहली बात है, ठीक है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। In the similar way, the tetrahedral complexes with the following configuration have orbital contribution. जैसे D3 में E2 हो गया, E2 T2 1 में क्या होगा, सिमिलर वही होगा हमारा सेम, जैसे E2 में इसमें नहीं होगा, मतलब T2 में है तो T2 में हो जाएगा, T1 इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें ऑर्बिटल होगा। मेन कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ तो कहने का इनका मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारा जब T2 वाला जो रहेगा अगर 3 रहे और T2 जो हमारा रहे G रहे, अगर ऑक्टाहेड्रल G लगाएंगे 6 रहे, मतलब कहने का ये है कि हमारा T2 मतलब 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अगर 1 2 3 हमारा क्या DXY है, XY है, YZ है और ZX है, ठीक है, तो हम रोटेशन मतलब इनको रोटेट करके इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब भी हमारा T2G3 हो गया, T2G6 होगा और EG में तो पहले से ही कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है क्योंकि EG में हमारा अलग अलग शेप है, एक DXY, EG में क्या हमारा इजी में क्या है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक डी जेड स्क्वायर है, तो इनका अलग ही शेप है, तो इसको हम रोटेशन करने के बावजूद भी शेप कर नहीं सकते। इसका भले से वैकेंट रहे, मतलब इसमें खाली रहे तो भी हम इसको रोटेट नहीं करें, मतलब इजी में हमें रोटेशन करना ही नहीं है, ऑर्बिटल होगा ही नहीं। और T2G में कंडीशन के T2G3 और T2G कॉमन सेंस है, अगर इसमें डबल रीजनरेट होगा भी नहीं होगा, सब समझ रहे हो आप, तो इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसे हमारा ऑक्टाहेड्रल का भी यही फंडा है, ठीक है। Experimental and calculated values of magnetic moment for some high spin and low spin octahedral complexes, ठीक है।
तो Ti3 प्लस का नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, आप उसको निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक का बता देता हूँ आपको। तो Ti3 प्लस है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 है इसमें, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है इसमें, तो बोर्स मैग्नेट्रॉन 1.73 आ गया, ठीक है। कैलकुलेटेड भी इतना ही, तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे आप कर लोगे इसको। In general, orbital contribution is possible in complexes in which the ground state of metal ion is electronically typically degenerate. Example T2G. On the other hand, the orbital contribution is not possible in complexes in which the ground state of metal ion is electronically non-degenerate or doubly degenerate. ठीक है, A2G और EG में orbital contribution नहीं होगा। A high spin octahedral complexes of D7, T2G5 और EG2, इसमें आप पता करो क्या होगा कि नहीं होगा। इसमें डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज metal ion have calculated experimental magnetic moment of 3.8 and 5.2 रेस्पेक्टली। क्यों होगा, क्योंकि इसमें T2G6 नहीं, T2G देखो EG तो होगा ही नहीं, EG कुछ भी रहे, EG 0 हो 1 2 हो, कुछ से मतलब नहीं है, हमें मेन T2G देखना है। T2G3 और 6 में नहीं होगा, बाकी सब में होगा, ठीक है। द हायर वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस COCl4 2 इसमें क्या E4 है, T2 3, देखो T2 3 है ना, इसमें क्या होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि T2 3 आ रहा है, ठीक है। The calculated and experimental magnetic moment of 3.8 and 4.5 volts magnetar. In this case, higher value of experimental magnetic moment is not due to the orbital contribution. Although in most of the complexes with ARE ground state, the quenching of the orbital contribution is expected to be complete, and the experimental magnetic moment is very small to spin only magnetic moment and is temperature independent. However, in some complexes there is a deviation of the experimental magnetic moment mu from the spin only magnetic moment ms. This is due to the temperature independent paramagnetism TIP. In such cases, the first excited state tau of spin multiplicity and the ground state mixes up to with the ARE ground state due to the spin orbit coupling. For those complexes in which spin orbit coupling is significant, the following equation is used to कैलकुलेटेड। म्यू इफेक्टिव क्या होगा हमारा, म्यू एस ओ 1 माइनस अल्फा लेमडा अपॉन टी, ठीक है। वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट विच इज डिपेंड्स अपॉन द ग्राउंड स्टेट एंड द नंबर ऑफ टी इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा 2 है फॉर D2 D5 ऐसा फॉर इतना इतना, ठीक है। डेल्टा इज द सेपरेशन बिटवीन द ग्राउंड एंड द excited state and can be obtained from the electronic spectra. Lambda is the spin orbit coupling constant and it is provide positive for D1 D2 D3 and D4 ions and negative for D6 D7 D8 and D9 ions. Since lambda is positive for D1 D2 D3 D4 ions and negative for D6 D7 D8 D9 and therefore the spin orbit coupling gives low values of magnetic moment for first set of complexes and higher value। देखो पहले में क्या हमारा नेगेटिव है तो हमारा लो सेट वैल्यू मतलब वैल्यू कम आएगा, और पॉजिटिव है इसमें तो हमारा ज्यादा आएगा, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है इसमें D6 से D9 तक, and higher value of magnetic moment for the later, ठीक है। The high spin octahedral complexes of Mn plus 2 D5 says MnS2O6 2 plus for which ground state is 6A1G has no excited state of same spin multiplicity as that of ground state. Therefore, mixing of ground state with any of the excited state due to spin orbit coupling is not possible. Thus, there is no orbital contribution to mu effective due to spin orbit coupling. Therefore, mu effective is same as mu SO. Alternately, since the ground state 6A1G arises from 6S terms for which alpha equals to 0, therefore mu effective is same as mu SO. The ground state for low spin complexes of T6 metal ion is also A1G, but all electrons are paired and hence the complex is diamagnetic. ठीक है। High spin and low spin equilibria. Octahedral complexes of D4, D5, D6 and D7 of first series transition metal ion can either be high spin or low spin depending on the magnetic magnitude of ligand field splitting delta 0 and pairing energy P. When the energy when the magnitude of delta 0 has an intermediate value in such a way that two complexes low spin and high spin have same energy, the two complexes can exist in equilibrium. The low spin and high spin complexes of a metal cation can be distinguished by measurement of either magnetic susceptibility or magnetic moments. For high spin complexes, delta is 0 is less than P, and for low spin complexes, delta 0 is greater than P. ठीक है। If
द डिफरेंट, देखो लो स्पिन हाई स्पिन कब बोलेंगे, हाई स्पिन कब होगा जब हमारा पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जब पेयरिंग एनर्जी हमारा ज़्यादा होगा तो हम उसको पेयर कर ही नहीं सकते, हमारा डेल्टा जीरो हमें अनपेयर्ड ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जब पेयरिंग एनर्जी कम होगा तो उसको लो स्पिन बोल, लो स्पिन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो, इसको बोलते हैं लो स्पिन, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन डेल्टा जीरो एंड पी इज स्मॉल और नेग्लिजिबल, द लो स्पिन हाई स्पिन कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। कंसिडर द लो स्पिन, consider the low spin FeCN6 4 minus with ground state 1A1G and high spin complex FeF6 4 minus with ground state terms 5T2G of Fe plus 2M. The Tanabo-Sugano diagram of low spin high spin complexes shows that energy of 1A1G and 5T2G ground state become comparable at or near the crossover point. At or near the crossover point, these two states coexist in equilibrium. ठीक है। The most important example illustrating this effect is FePHEN, मतलब phenyl twice NCS twice. At high temperature, this complex exists as a high spin with 4 unpaired electrons. When the temperature is decreased, there is sharp decrease in magnetic moment at 174 Kelvin, and the complex become low spin. This indicates that at 174 Kelvin, Fe-phenyl NCS twice exists as a both high spin and low spin complexes. ठीक है। तो ये चैप्टर तो सबसे बेहतरीन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा और है क्या इसमें, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं होगा, ख़त्म हो गया शायद। हाँ ये आप इसको ऑब्जेक्टिव करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म हो जाता है और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को होगा। मेन बुक रीडिंग का मतलब ये होता है ना कि आप एक एक लाइन बाय लाइन नए नए वर्ड्स को आप थियरी, मतलब कहीं भी आप नोट्स पढ़ोगे या कहीं भी लेक्चर देखोगे तो टीचर्स आपको पूरा कंप्लीट नहीं दे सकता, मतलब हर चीज़ नहीं बता सकता। वो एक चीज़ को मतलब पढ़ेगा फिर उसको समराइज़ करके फिर अपने उसको लैंग्वेज में समझाते हैं। लेकिन बुक्स रीडिंग में ये फ़ायदा होता है कि हर एक चीज़, हर एक लैंग्वेज आपसे कुछ छूट नहीं पाएगा। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि या तो आप बुक्स खुद से पढ़ो या तो इस वीडियो को देख के आप उसको समझो, आप उसको हेडफोन लगा के डायरेक्ट देखो, ठीक है, टाइम दो इस पे, क्योंकि बुक्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे ही सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, बुक केमिस्ट्री क्लासेस को, और ऐसे ही ग्रो करिएगा। और प्लीज़ दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखो तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जब सब्सक्राइब करने से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है आप सभी को मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए। और ज़रूरत पड़े अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ये शेयर करने में अच्छा है, मतलब आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा और अच्छा किसी को हेल्प करना भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और पढ़ाई जम के करिए, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।